Very good morning. And Assalamu alaikum. I hope your life is good to you. Very nice. So today's agenda is discussion of question number 17.3. Please open your registers. इस वक्त हम कीट में खड़े हैं, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास है और हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17.3. Sarah, I invite you to read the question, please. Sarah, will you please come here to read the question? That's very nice. Yes. Please read out the question. You are to open a book of F. Ford, a trader via the journal to record the assets and liabilities. So basically, she's talking about assets and liabilities. Thank you, Sarah. Please sit down. All the subjects all over the world are divided into two sciences. Pure sciences, and I told you in the last class, pure sciences and Social sciences. Very nice. In social sciences, we have a mother of the subject, and that is called economics. Economics is the mother of social sciences, and a branch of financial economics which comes from economics. Financial accounting is a branch of financial economics. I should say accounting is a branch of financial economics. Accounting में दो टाइप होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक्सटर्नल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, which is related to decision making. आज का जो क्वेश्चन है that is related to financial recording. फाइनेंशियल अकाउंटिंग को जब हम डिटेल में देखेंगे तो पता ही चलेगा कि one part मुजम्मिल is recording and one part is reporting. So today we are going to discuss recording. Question number 17.3, which is being given to you in your book, which is Business Accounting 1, written by Flywood. तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सारा ने ये कहा कि यू आर सपोज टू ओपन द बुक्स. जब हम बुक्स की बात करेंगे तो हमारा माइंड जाना चाहिए फौरन किस पर? जर्नल्स पे. We have 6 journals. The story starts in such a way, the journey starts in such a way that at first in front of you a transaction comes. Transaction. Yes, Rao. What do you understand by the term transaction? Any idea? No, sir. Someone? Transaction. Anybody? Yes. Money value is past. Very good. What's your good name? Shiraz. Money value and past. But one more thing, a transaction must be in past with the money value, and add one more thing. There should be something which is being exchanged. I saw a person was selling a car. I saw past. नहीं, ये transaction इस तरह नहीं है. I sold the car by rupees the amount. That is a transaction. एक्सचेंज भी होना जरूरी है. जर्नी शुरू होगी ट्रांजेक्शन से. आफ्टर ट्रांजेक्शंस वी विल गो ऑन द नेक्स्ट स्टेप. विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट्स. सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द प्रूफ ऑफ द ट्रांजेक्शन. आई गॉट ए मार्कर, उसने मुझे रसीद दे दी. सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? इनवॉइस, कैश मेमो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट. इस पर बात करेंगे डेबिट और क्रेडिट पर. एनी कॉरेस्पॉन्डेंस विच इज ए प्रूफ ऑफ द ट्रांजेक्शन, दैट इज बेसिकली ए सोर्स डॉक्यूमेंट. सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद डेटा कहाँ जाएगा? डेटा जाएगा डे बुक्स में. डे बुक्स आर जर्नल्स एंड वी हैव 6 जर्नल्स. सेल्स डे बुक, purchase day book, sales return day book, purchase return day book. These 4 day books are related to inventory. Point number 1. Inventory are those goods which we bought for resale. And number 2,
The first thing is what? These 4 tables. The next thing, cash book. Cash is the king. No money, no honey. So cash is very important. So we have a cash book as well. And then finally, we have the journal. आमतौर पर अमेरिकन अकाउंटेंट्स जो रिकॉर्डिंग करते हैं या यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, चूँकि हम अमेरिकन सिस्टम फॉलो करते हैं, तो स्टूडेंट्स को ट्रांजैक्शन के बाद सोर्स डॉक्यूमेंट बाज़ टीचर्स बताते हैं, बाज़ नहीं बताते। हमें समझना है कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपका फी चालान की आपको कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी आपको जो सोर्स डॉक्यूमेंट देती है, फी चालान, वो क्या है? वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। जो फी चालान आपको देती है दैट्स सोर्स डॉक्यूमेंट। अब कैश बुक के बाद एक जो बुक हमारी ले जाती है दैट्स कॉल्ड जर्नल। तो सागर ने जो ट्रांजेक्शन पढ़ी उसमें उन्होंने ये बताया कि एक बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस, समवन माय क्वेश्चन इज टू यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बिजनेस? A business, write down, a business is a commercial activity. Stand out of the crowd. A business is a commercial activity which is performed by economic agents. We all are economic agents. तो जो पहली ट्रांजेक्शन है उसमें सारा ने क्या पढ़ा? उसमें उन्होंने ये पढ़ा कि जनाब अली बिजनेस शुरू हुआ और आपको डे बुक्स बनानी पड़ी। तो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? रिकॉर्डिंग की, ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जर्नल्स, देन वी गो टू लेजर्स। 3 लेजर, GL, SL, PL, जनरल लेजर, सेल लेजर एंड परचेज लेजर, एंड देन वी वेंट टू लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस। सारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगी। इस क्वेश्चन के थ्रू हमारे पास क्वेश्चंस भी हैं, हमारे पास पिक्चर्स भी हैं। इन पिक्चर्स को भी हम अपलोड कर देंगे YouTube के चैनल पे हमारे किट के, ताकि स्टूडेंट्स देखें कि हमारे यहाँ किस तरह से लोगों की वैल्यू, स्टूडेंट्स के लिए वैल्यू वी ऐड। तो सारा कंटिन्यू करें वहीं से क्वेश्चन। एंड देन आर टू रिकॉर्ड। सबसे पहले विल यू प्लीज रीड फ्रॉम द बिगिनिंग? We are a journal to record the assets and liabilities, and then are to record the daily transactions of the month of May. A trial balance is to be extracted on 21st May to 28th May. फाइन, वो आपको ये बताता है कि आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। जर्नल में जाएंगे, जर्नल के बाद आप स्पेशल जर्नल जाएंगे। आई मीन अब ये वाली जो ट्रांजेक्शन है, द फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17.3, इसकी स्टोरी ये है कि यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन को हम जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे दैट इज जर्नल, और इस जर्नल में हम रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग एंट्री। तो राव ये समझ लें कि ओपनिंग एंट्री जो होती है उसमें क्लोजिंग डेटा इज ट्रांसफर्ड, आर यू विद मी जेंटलमैन? द क्लोजिंग डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर। तो वो जो ट्रांसफर होगा इस साल, तो वो किस बुक के थ्रू होगा? जर्नल के थ्रू होगा। अमेरिकन अकाउंटेंट्स को कहते हैं जर्नल। अमेरिकन अकाउंटिंग में जर्नली स्टूडेंट्स को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ 2 चीज़ें सिखाते हैं वो इनिशियली। जर्नल, सारे 6 जर्नल नहीं, सिर्फ जर्नल, सारी एंट्रीज जर्नल में, और फिर कैश बुक। प्रैक्टिकली भी बहुत सारी छोटी फर्म्स जो हैं वो सिर्फ 2 डे बुक्स बनाती हैं, एक द जर्नल और एक कैश बुक। ब्रिटिश अकाउंटिंग, हालांकि अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम में भी इन 4 बुक्स, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न, इनको स्पेशल जर्नल का नाम दिया गया है। और स्पेशल जर्नल के थ्रू इनको सब सिखाते हैं, स्पेशल जर्नल सिखाते हैं। लेकिन ब्रिटिश अकाउंटेंट क्या करते हैं, जब भी कोई डेटा रिकॉर्ड होगा तो 6 डे बुक्स में देख के रिकॉर्ड करेंगे, जो सा डेटा उस डे बुक में जाएगा। तो पहली ट्रांजेक्शन जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। और मुसम्मिल आपके पास ट्रांजेक्शन मौजूद है? किसके पास मौजूद है सारा के अलावा ट्रांजेक्शन? जी, कौन पढ़ेगा? प्लीज़ रीड आउट, पूरी ट्रांजेक्शन पढ़िए आप, ताकि मैं एक एक चीज़ बता सकूं और आप लिख सकें। जी, एसेट्स, इन्होंने कहा पहले पैराग्राफ में, पैराग्राफ पढ़ना आना चाहिए। तो बॉटम लाइन क्या हो गई? इन्होंने कहा एसेट्स, एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेस। जैसे मैंने आपको बताया, ऑल द सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 साइंसेस। सोशल साइंसेस में इकोनॉमिक्स की ब्रांच फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की ब्रांच अकाउंटिंग, और हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 5 अल्फ़ाबेट है, 5
और वो 5 हैं CLEAR। Clear. C for capital, L for liabilities, E for expenses, A for assets and R for revenue। तो जो पहली ट्रांजेक्शन होगी उसमें इन्होंने बता दी एसेट्स। कौन कौन से एसेट्स बताएं? प्रेमिसेस, नंबर छोड़ दें। प्रेमिसेस, वैन, फिक्सचर्स, ये सारे हैं नॉन करंट एसेट। पिछले साल में जो भी नॉन करंट एसेट्स थे वो सारे के सारे इस साल की ओपनिंग एंट्री के तौर पर थ्रू ओपनिंग एंट्री रिकॉर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ करंट एसेट्स नजर आते हैं। बैंक कैश, जी बैंक है, कैश है, अकाउंट रिसीवेबल, इनको कहते हैं डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल। उसके बाद लायबिलिटीज, और आपने देखा इस क्वेश्चन में उसने आपको कैपिटल नहीं दिया, तो बड़ा आसान है। रिसोर्सेज आर इक्वल टू सोर्सेज, एसेट्स आर रिसोर्सेज। 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, CLEAR, C for capital, L for liabilities, E for expenses, A for assets and R for revenue। C कैपिटल इन्वेस्टमेंट, 2 किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है, कैपिटल इन कैश और कैपिटल इन काइंड। इन्वेस्टमेंट इन कैश एंड इन्वेस्टमेंट इन काइंड। जब भी कोई नई बात पता चले फौरन लिख लें। देन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, लोन। देन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस, नॉट ऑन कैश बेसिस। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास प्रोडक्ट आ गई, आपने सर्विसेज ले ली, आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, चाहे पैसा जाए चाहे पैसा ना जाए। CLEA एसेट्स, इकोनॉमिक रिसोर्सेज बता दिया। CLEAR रेवेन्यू, इनकम, रेवेन्यू और प्रॉफिट, 2 अलग अलग चीजें। तो बॉटम लाइन क्या बनी कि जो पहली ट्रांजेक्शन है उसको हम एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल। उसका फॉर्मेट आपके सामने मौजूद है। उसका फॉर्मेट इस तरह से होगा, डेट, डिटेल्स, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट वाइज डेटा होगा। एक ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में तो उस ट्रांजेक्शन की एक ही डेट डालेंगे और डेट डालने की जरूरत नहीं है, ये इस ट्रांजेक्शन के साथ रिलेट करता है। डेबिट, डेबिट के आगे CU, CU का मतलब होता है करेंसी यूनिट। पाकिस्तान में पाक रुपीस, UK में पाउंड, US में डॉलर, ओमान में ओमानी रियाल। सो बॉटम लाइन, करेंसी यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। कौन कहता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ये बताते हैं कि चीज़ों को किस तरह रिकॉर्ड करना है। दीज आर गाइडलाइंस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये रिकॉर्ड हो रही है, सारे एसेट्स को हमने रिकॉर्ड कर दिया और नंबर लिखा हमने डेबिट साइड पर। प्रीमियस का कोई नंबर है? कितना नंबर है? 34,000, यस 34,000 पाउंड। इसी तरह तमाम एसेट्स के नंबर लिख दिए और आपने फिर लायबिलिटीज के नंबर लिख दिए। जब ये एंट्री बनाते हैं तो ये यहाँ से लिखना शुरू किया, लेकिन क्रेडिट साइड पर थोड़ा जगह छोड़ के, इसे कहते हैं इंडेंटेशन। लुकस पिकोली स्टार्टेड डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन उसने दिया। वो ये कहता है कि इंडेंटेशन करके लिखो, जगह छोड़ के लिखो, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपने ब्रैकेट में लिखना है। इसे कहते हैं नरेशन। बॉटम लाइन, एसेट्स मौजूद है, लायबिलिटीज भी मौजूद है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर 100 रुपये मौजूद है और 100 रुपये में से 75 जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो बाकी 25 जो होगा वो आपके पास कैपिटल, 25 जो है वो आपकी क्या है? उधार है। तो 75 आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी तो खुशियाँ, क्यों कि अगर लायबिलिटीज ज़्यादा होंगी तो उसका मतलब ये हुआ कि लोग इंटरेस्ट में आपका पैसा खा जाएंगे। इंटरेस्ट मीन्स प्राइस ऑफ मनी। आप मेरे साथ हैं, यू इन द मिडिल। बॉटम लाइन, थैंक यू। बॉटम लाइन क्या बनी? अगर कैपिटल ना हो तो भाई कैसे निकालेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से। तो बॉटम लाइन एक और बात, वो क्या बात थी कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब एसेट्स हैं। वो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगी? या तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आएंगी या लायबिलिटीज के थ्रू आएंगी। हमें खेला, आगे खेलेंगे। हमारे पास पहली ट्रांजेक्शन आ गई, उसमें उसने कैपिटल नहीं दिया था,
हमारे पास टूल है एंड द टूल इज अकाउंटिंग इक्वेशन। वहां से हमने एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस की और कैपिटल निकाल लिया। पहली ट्रांजेक्शन डे बुक में रिकॉर्ड हो गई, जर्नल में रिकॉर्ड हो गई, काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब जर्नल के बाद हमने जाना है लेजर्स में। अकाउंटिंग साइकिल क्या कहता है? कहता है ट्रांजेक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट, ट्रांजेक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट, डे बुक्स, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस। तो हमने पहली ट्रांजेक्शन को क्या किया? डे बुक में रिकॉर्ड कर दिया और हमारी इस डे बुक के थ्रू जो है वो जर्नलाइज हो गई। इसमें कोई एक्सपेंस और कोई इनकम रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ओपनिंग एंट्री जो होती है वो सिर्फ एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की होती है। इसमें किसी किस्म का एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड इसलिए नहीं होगा कि पिछले साल के एक्सपेंस और इनकम पिछले साल में क्लोज हो जाए। दिस वॉज द फर्स्ट चंक ऑफ द क्वेश्चन इन विच आई डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग एंट्री। यहाँ पर हम वीडियो को कंट्रोल भी करेंगे और क्लास के लिए एक हम ब्रेक भी लेंगे 2 मिनट का, और उस ब्रेक के बाद हम सेकंड सेशन में आएंगे और उस पार्ट 2 में हम ये देखेंगे कि ये वाली ट्रांजेक्शन किस तरीके से कौन कौन सी जगह पर रिकॉर्ड होती है। इसको आखिरी मिनट में आपको समअप करता हूँ। हमारे पास एक ओपनिंग एंट्री थी, ओपनिंग ट्रांजेक्शन थी। वो ट्रांजेक्शन जो थी उसमें एसेट्स, लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन थी, कैपिटल मौजूद नहीं था। हमने कैपिटल कैलकुलेट करना है ताकि डेबिट और क्रेडिट बराबर हो सके, क्योंकि एवरी डेबिट हैज़ ए क्रेडिट और नंबर दोनों जगह बराबर होने चाहिए, तब उसको हम जनरलाइज करेंगे। तो हुआ ये कि जनाब आली हमने वो सारा डेटा लिया। आजकल तो आपको पता है कंप्यूटराइजेशन, लेकिन अगर मैनुअल अकाउंटिंग के थ्रू समझना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बड़ा ज़रूरी है। देन यू कैन अप्लाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपने सारे एसेट्स को डेबिट कर दिया। डेबिट और क्रेडिट कुछ भी नहीं है, ये लैटिन वर्ड्स हैं, इनको डिटेल में हम सीखेंगे। इस फॉर्मेट में जो डेबिट कॉलम है उसका मतलब समझ लीजिए कि फर्स्ट कॉलम, और जो क्रेडिट कॉलम है उसका मतलब है सेकंड कॉलम। तो सबसे पहले जो एंट्री रिकॉर्ड होगी वो डेबिट एंट्री होगी। ऐसा नहीं कि डेबिट एंट्री बाद में रिकॉर्ड कर दी और क्रेडिट ऊपर रिकॉर्ड कर दी, नहीं, डेबिट पहले रिकॉर्ड होगी। अगर एक आइटम मौजूद है डेबिट का तो एक डेबिट एक क्रेडिट। अगर एक से ज़्यादा डेबिट है, एक से ज़्यादा क्रेडिट है, तो ऐसी एंट्री को कहते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री का मतलब बहुत सारे डेबिट बहुत सारे क्रेडिट, या एक डेबिट बहुत सारे क्रेडिट, या एक क्रेडिट बहुत सारे डेबिट, लेकिन एंड में उनका टोटल सेम होना चाहिए। जनरलाइजिंग हम करने जा रहे हैं। फाइनली इस एंट्री में हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, कैपिटल नहीं था, हमने कैपिटल कैलकुलेट कर लिया, हमारी जनरलाइज हो गई। अब पहला काम हो गया, अब हम जाएंगे जनाब अली टी अकाउंट में, और उसके लिए हम सेकंड वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।